हे गाइस, तो मैं हूं देव और आज मैं आईआईटी धारवाड़ में कुछ फ्रेशर्स का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। चलो। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना अपना इंट्रोडक्शन दो, कहाँ से हो और कौन सी ब्रांच है, नाम क्या है। My name is Isha. I'm from Rajasthan. My name is Isha. I'm from Rajasthan. MSc Physics. My name is Amrita Gupta. I'm from Varanasi. My department is Molecular Medicine, MSc. I am Aditi and I am from Uttar Pradesh. I am pursuing MSc in Physics from IIT Dharwad. I'm Kanaga and I'm from Tamil Nadu and I'm doing here MSc Chemistry. तो आईआईटी धारवाड़ में आपका पहला दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। It's quite good, and professors are very young, so they are doing current research projects. They are also getting tons and tons of fundings, and the labs are amazing. And professors also inviting us to do projects and everything from the laboratory to their advising. Everything is nice here. I liked our department so much because when we visited the laboratory, we didn't consult it to our HOD, but they just politely invited us and showed them our lab, showed us their lab. And we met to the PhD scholar also. They were also very friendly. They were explaining each things very beautifully, and we just got it. मैथ्स फैकल्टी के बारे में आपका क्या कहना है? मैथ्स अच्छी है, खाना कितना और रेट, और बताओ कितना रेट करना चाहते हो आउट ऑफ 10। मैथ्स अच्छी है। ओवरऑल यहाँ के हिसाब से, हॉस्टल के खाने के हिसाब से तो अच्छी है। मैं 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगी। घर के खाने से तो कंपेयर नहीं कर सकते, पर हाँ 7 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूँगी। बट स्पाइसेस थोड़ा-सा मतलब कभी-कभी तो ज़्यादा हो जाते हैं और जिस चीज़ में स्पाइस ज़्यादा चाहिए वो एकदम न्यूट्रल रहता है टेस्ट। It's quite amazing, but I think they given a full meal. They have to add some fiber to the diet plan. That's missing. They're only giving cucumbers and beetroot. Need to add other and fruits some other too. Fruit also. There is low. They are putting rasna and tank, so that need to be avoided. I think so. Instead of that, they can give buttermilk. हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बताइए, कैसा है कैसा नहीं है। Hostel is quite nice actually. Compared to other hostels, I found it very very spacious, very aesthetic also because in one room there are 4 beds, so it's quite spacious. Everyone can have their own space, so I like it. Yeah, I like that for MSc master's program there are only 3 students in one room. So room is quite spacious. Everyone have their private space, and I am very glad that bathrooms are so clean. They have so this is the plus point. They have a separate shower room and toilet. So it is quite. This is very good. Yes, and the housekeeping also coming daily and cleaning the room, and they also have quite doing their role correctly. अभी जब अपन आए हैं शुरू से, तो उसके बाद 3-4 दिन से जो ओरिएंटेशन चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन ही गए उसके बाद नहीं गए। हमने ओरिएंटेशन में 2 सेशन मिस करा है। तो फर्स्ट सेशन तो काफ़ी अच्छा था। मतलब हमें इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया कि हमारा इंस्टीट्यूट का एरिया कितना है, कितना हमने फॉरेस्ट मतलब उन्होंने रिज़र्व के लिए छोड़ा है। बाकी हम ये बेटर है कि हमें मतलब कैंपस में आने से पहले ओरिएंटेशन में सब पता चल जाता है कि रूल्स क्या है, लाइब्रेरी में बुक्स कैसे इश्यू करानी है। बाकी जैसे और जिम नॉलेज सेंटर है, वहाँ क्या काम होता है, जिम हमें जॉइन करना चाहिए और वेलनेस से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ है, वो क्या ही मतलब कैसे पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ इंट्रोडक्शन में पता चल जाता है। It's also about the bus timings to reach the central railway station. So they increase the timing schedule also. So it's quite good. जब आपको आईआईटी धारवाड़ मिली, तो उस टाइम आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और आखिर रियलिटी में क्या मिला? अच्छा था, बुरा था? आई थिंक जितना सोचा था उससे अच्छा है मेरे हिसाब से। और और वेदर तो यहाँ का सबसे प्लस पॉइंट है, बेस्ट चीज़ है क्योंकि हमेशा अच्छा वेदर था, प्लेजेंट वेदर होता है। कभी-कभी बारिश होती है, अचानक से बारिश आती है, लेकिन ओवरऑल अच्छा है वेदर है।
सो जैसे हमेशा ही होता है कि ओल्ड एनआईटी को पहले प्रेफर करो, न्यू आईआईटी है कैसा होगा, फैकल्टी अच्छी नहीं होगी। पर यहाँ आके अच्छा लग रहा है कि फैकल्टी भी सपोर्टिव है। कैंपस के बारे में जैसा सुना था कि मतलब जैसे हम आईआईटी जम्मू है वो भी सेम ईयर में बना था, पर उसका ज्यादा वो है क्रेज, मतलब वो प्रेफर करते हैं ज्यादा लोग। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वेदर के अकॉर्डिंग फैकल्टी भी अच्छी है तो आना चाहिए। हमारा तो पहला ही बैच है एमएससी का, हमने फिर भी अपनी लाइफ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्लेस चूज कर लिया। अच्छा है, ओवरऑल इट इज गुड। Overall, it is good, but for me, I think a library there is limited books only. So I think that's the I think only. they will issue, But actually, there are more chairs compared to books. So that's a little bit disappointing for me. But overall, it is good. From gym to wellness center, it's good. कुछ एडवाइस देना चाहिए ऑडियंस को कि क्या आईआईटी धारवाड़ में आना और दूसरी आईआईटीज को छोड़कर कंपेयर में अच्छा है या बुरा है कल्चर के हिसाब से बाकी सब कुछ? अगर आपको मिलता है आईआईटी धारवाड़ तो ये सोच के कि बहुत दूर है या अच्छा नहीं होगा या लोअर आईआईटी है, रैंक अच्छी नहीं, तो ऐसा नहीं सोचना है। ओवरऑल आपको ही पढ़ना है और आईआईटी इज आईआईटी, तो उसके हिसाब से आई थिंक अगर आना चाहो तो बहुत अच्छी जगह है। सो आई एम बेसिकली फ्रॉम नॉर्थ रीजन, तो हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि साउथ इंडिया है, बहुत दूर है, नहीं आना है। पर मैं ये बोलूंगी कि सब अच्छा है, कैंपस में आप टोटली सेफ हो, आप रात में भी यहाँ पे घूम सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात कि ये सोचना कि मतलब न्यू आईआईटी तो बिल्कुल ही कोई फैकल्टी अच्छी नहीं होगी, डिपार्टमेंट्स अच्छे नहीं होंगे, तो ये वेल डेवलप्ड है। बस थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी 9 साल ही हुआ है इस आईआईटी को, तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अपने प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड्स को और भी बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम टाइम देंगे, अगर हम सपोर्ट करेंगे तो फिर फैकल्टी डेवलप करेगी ना, और इंस्टीट्यूट डेवलप करेगा। Yes, actually, you people will think that the ID Dharwad is above NIR of rank 100. So you people think about that, but it's not like that. You can pursue your PhDs in MIT, Stanford, and US because here the paper quality is good. For me, I seen that the instruments is also about current specifications, and here HPC is available, high performance computing, and people are doing computational projects here, so it's good. You can reach here. यहाँ के स्पोर्ट्स में क्या आगे चल के आपको स्पोर्ट्स में लेना है, एनएसएस ज्वाइन करना है या नहीं? जिम खाना तो बहुत अच्छा है। हमने ज्वाइन भी कर लिया है, हम जाएंगे भी। बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए अलग अलग टाइमिंग है। गर्ल्स के लिए सिर्फ दो स्लॉट आई थिंक, सुबह में और एक शाम में, और बाकी टाइम तो कॉमन है। आपको अगर लड़कियां जाना चाहे तो दोनों, मतलब कभी भी जा सकती अलग अलग सेपरेट सेपरेट है। हाँ, अपर बॉडी के लिए एक अलग है, लोअर बॉडी के लिए अलग है। और हमने विजिट किया था, हमें तो ओवरऑल अच्छा लगा कि पढ़ाई से हट के अगर आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने को मिल रही है तो बेटर है कि आप एक्सरसाइज करो, कैलोरी बर्न करो, और स्ट्रेस बस्टर भी है वो। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो अच्छा है। हमने तो ट्रायल में भी पार्टिसिपेट किया था, तो हम मतलब मेरा तो ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में नहीं थी, तो मैं नहीं ज्वाइन करूंगी आगे चल के। पर जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उन्हें तो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। पूरी अपॉर्चुनिटीज है और इक्विपमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं सारे स्पोर्ट्स में। Yes, you can even play it at night. My seniors do play at night too. After completing their lab work, they go and play at night. So they are giving the freedom to us to play at any time in a badminton court. हाँ, जिम इज ओपन until 11, तो यू कैन कम एनी टाइम। वैसे ओवरऑल मेस, हॉस्टल और बाकी स्पोर्ट वगैरह सबको मिलाकर हॉस्टल को कितनी रेटिंग देना चाहोगे? हॉस्टल ने कॉलेज को पूरे को कितनी रेटिंग देना चाहोगे आउट ऑफ 10? आई थिंक 8.5। 1.5 इसलिए काट रही हूँ क्योंकि अभी ये नया, और सिर्फ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी थोड़ी कम है, बाकी परफेक्ट है। मेरा भी सेम है 8.5 आउट ऑफ 10 कि, और एक और पॉइंट कि हमारे एचओडी ने कहा कि एक्सप्लॉइट आईआईटी एज मच एज यू कैन, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड यू जस्ट नीड टू ग्रैब दैट। दिस इज ऑन यू दैट हाउ you can use it. So 8.5 out of 10. I will give a 9 because here the air is so fresh, the oxygen is high. Even you go for IIT Madras, IIT Bombay, IIT Delhi, the quality of air that is so bad. So you will get a good health here.
you can breathe fresh air here, so it's okay. ओके, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank you so much.